is accredited as Category A by National Assessment and Accreditation Council, by Academic Audit Cell of GGSIPU consecutively for past 8 years, and also by Joint Inspection Committee of Government of NCT of India. It is also assessed as Category A+ by State Pre-Regulatory Committee. A fee committee of Government of NCT of Delhi also has been rated number 2 by Times B School Survey 2018, 2019 and 2021. The institute conducts postgraduate courses like MBA, first and second shift, MBA International Business and graduate courses of BBA, BBA LLB and BA LLB. The Center for Legal Studies GIPS has introduced Personality Development Workshop as a platform to give knowledge of research skill using search tool of AIR to our law students. On our today's Personality Development Workshop, we invite eminent expert of AIR team to equip us as to how to use the AIR research tool. The All India Reporter was conceptualized as a law journal reporting cases with its head notes from all high courts across India and the Privy Council. The All India Reporter as an organization is a pioneer in the field of law publication and for revolutionizing the law publication sector. Apart from conceiving the first and only pan-India law report publication, they have many firsts to our credit. In order to fulfill our intent of inculcating such expertise in the students, we have our eminent speaker with us, Mr. Amit Singhal. Sir is the state head of All India Reporter Private Limited for Delhi NCR. We are privileged to have you, sir. I would like to invite them for the session. After Corona, welcome back. जैसा भी लगा है आपने कोरोना myself Amit Singhal and K.S. Palla Singh Ara, we are here to introduce you about AIR today. First of all, I will tell you about AIR. What is actually AIR? We will start this very it's going to be Except that all great things are in their natures. It was because of his vision that he symbolized the government and is closer to the bring up the organization and publishing in the country. The Parliamentary Reporter as an organization from dignity and unity has been the primary theme of your publications and for revolutionizing the publication business. Apart from considering the first and only pan-Indian law reports publication, we have many firsts to our credit. The AIR Branded Series, largest of various topics, and sourced and most research papers, the biggest stats are all published under the AIR banner. With the element of e-media as a reliable and convenient mode of information transmission, AIR has forayed into regionalism under the banner of AIR Reporter. All the journals are now available in the CD as well as the web media. Thus, AIR has a presence in only 3 media of information transmission: print, CD, and web services, making it a very robust and reliable publication house, which is responsive to the needs of the market without compromising the core belief of optimal quality at all effective costs. We also can boast of having the entire infrastructure of publishing our publications in one look, from receiving the judgments from the correspondent to editing them. Any press activities, printing, post-press activities, and finding the dispatch to them. All these activities are done under one roof. We command the leadership loyalty of nearly 1 million members, and we dispatch those to 1 lakh books per month. गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपको डेमो से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आवाज़ आ रही है ना अच्छे से? जैसे भी काफ़ी लोग बैठे हुए कि चलो एक क्लिप स्टार्ट हो गई, हमने देखा, हमारा काम खत्म। तो AIR को आप ऐसे मत समझना, अगर आप लो स्टूडेंट हैं वैसे हो आप कि आज देखा और कल चले गए। लाइफ टाइम जब तक आप हो, आप इसको छोड़ नहीं सकते। ये कोई कंपनी नहीं है, ये आपके लोगों का एक पार्ट है। आप इसको छोड़ के जा ही नहीं सकते अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो। ऑल इंडिया रिपोर्टर का नाम ही काफ़ी है अपने फील्ड के लिए। ठीक है सर?
इसके अलावा आपको ऑल इंडिया रिपोर्टर का डेमोस्ट्रेशन का एक नॉर्मल पर्पस है, क्लिप दिखाना नहीं है। आपकी लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्लिप दिखा रही कोर्ट रूम की या कोर्ट प्रोमाइसिस की, तो आप ऐसा नहीं कि ये कंपनी कोई बंदे आए थे, डेमो दिया और यहाँ से चले गए, आपका काम खत्म हो गया, वो नहीं है। हमने आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिया है, आज हम आपको उसको समझाएंगे और 20 या 30% आप उसको कैच कर पाएंगे। बट अगर आप उसको रेगुलर यूज करेंगे तो आपकी लाइफ में प्लस आपका फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर के लिए वो बहुत कॉन्फिडेंस होगा आपके लिए। मैं आपको एक छोटा सा प्रिपरेशन दूंगा अबाउट दी AR ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। हाँ सर कीजिए, कौन सी लाइट ऑफ करनी है? हाँ जी। ओके, this is our home page of our software. All these are legal search engine, like citation search, nominal search, judgment search, as per your consumer requirement. It means advocate requirement. मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा साइटेशन सर्च। साइटेशन सर्च बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा साइटेशन होता क्या है। जैसे मैडम को तो अच्छे से पता है, अगर कोई नए स्टूडेंट होंगे, साइटेशन बनता कैसे है। कोई भी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट से डिलीवर होती है, किस ईयर में वो डिलीवर हुई है, थ्रू सुप्रीम कोर्ट या किस हाई कोर्ट से वो डिलीवर हुई है, उसका एक वो बनाया जाता है। लाइक जैसे AR ने उसको पब्लिश किया, AIR, SC का मतलब होगा सुप्रीम कोर्ट, विच ईयर होगा, उसके बाद पेज होगा। कोई भी जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट से सपोज कोई जजमेंट आया, तो सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आता है वो एक रफली जस्ट लाइक अ लॉ में हेड नोट जस्ट लाइक अ समरी ऑफ द जजमेंट। सपोज अब अयोध्या वाला केस आया था, अयोध्या वाला केस का जो जजमेंट का नंबर ऑफ पेजेस है 900 पेजेस का जजमेंट था। अब 900 पेजेस का कोई जजमेंट अगर रीड आउट करे तो इट्स नॉट इजी। उसका एक हम ब्रीफ बनाए थे, मतलब एक समरी बनाए थे, मींस 1 या 2 पेजेस की जस्ट लाइक अ समरी ऑफ दैट जजमेंट व्हिच कॉल्ड हेड नोट। एंड हेड नोट AIR के वर्ल्ड फेमस है, नोबडी कंपेयर हेड नोट्स ऑफ AIR। जैसे कि अगर हमें कुछ सर्च करना है तो ये फर्स्ट देन पब्लिकेशन ईयर, वी हैव द डेटा since 1942 onwards, Supreme Court and all India High Courts. If I go on from 10, Then publication segment, full report. Then judicial body it means Supreme Court and all India High Courts. Then page number. page number. This is our citation AIR 2010 Supreme Court 90. It means ये जजमेंट 2010 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में 90 नंबर पेज पे प्रिंट हुआ था। आप इसको अगर फॉर्मेट ऑफ एनी जजमेंट, सबसे पहले साइटेशन आती है, उसके बाद ये कहाँ से हुई है, सुप्रीम कोर्ट से हुई है या फिर किसी हाई कोर्ट से हुई है, उसके देन तो जज के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, उसका नाम, देन उसके बाद पिटीशन, अपील नंबर, डेट ऑफ जजमेंट, देन दिस इज हेड नोट, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज हेड नोट, समरी ऑफ दिस जजमेंट। इसमें आप देखेंगे एक केस रेफर करके एक जगह है, दिस पर केस रेफर का मतलब होता है ये वाला केस आगे भी रेफर्ड हुआ है। जब भी आप साइटेशन पढ़ेंगे आपको 3 चीजें मिलेगी, ओवररूल्ड, केस रेफर्ड एंड रिलाइड, एंड एक होता है जिसका कोई रिमार्क नहीं होता, न्यूट्रल। ये वाला केस है केस रेफर्ड। इसी सेम इस केस से आपको अगली जजमेंट को रीड आउट करने में आसानी होगी। सर जो केस रेफर्ड है तो हमको पता चल सकता है कौन से हाई कोर्ट से? यस ये बताइए कैसे? इसी के ऊपर अपन क्लिक करेंगे 1995 AR सुप्रीम कोर्ट 2020 है।
मैम इसमें क्लियर मेंशन दिया हुआ है, ये EIR 1995 EIR सुप्रीम कोर्ट 2028 का जो केस है ये रेफर हुआ है इन EIR 2010, मतलब इस केस को रेफर किया हुआ है। और इस अगर आप इस केस को भी अगर ओपन करना चाहें तो हम इस केस को भी ओपन कर सकते हैं। अच्छा सर, आई अंडरस्टूड दैट। आप ये बताइए, मान लो ये हमारा केस है, मान लो ये डिवीजन में आया या ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आया, वो पता चल सकता है? वो इसकी जुडिशियल हिस्ट्री भी आपको देख सकते हैं। जुडिशियल हिस्ट्री में दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए जुडिशियल हिस्ट्री बताइए। जुडिशियल हिस्ट्री, दिस इज अ जुडिशियल हिस्ट्री, व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सर आई जस्ट कैन यू डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास एक मूड प्रॉब्लम आती है, इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 केसेस। आपको एक केस समझ में आ जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का केस उस पे है बेस्ड, आई नो इट, बट दिस इज द मैजिक ऑफ दिस। आपको यहाँ से जुडिशियल हिस्ट्री पता चल जाएगी। A lot of times a case is coming from the queue and you don't know what is it about. The judicial history of the case actually tells you कि क्या मैटर हुआ था, क्या हुआ था, फैक्ट क्या थे। जो ये केस छोटे कोर्ट से चल के डिस्ट्रिक्ट पे पहुंचा, डिस्ट्रिक्ट से चल के हाई कोर्ट पे पहुंचा और हाई कोर्ट से चल के सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा। डू यू गेट इट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल नॉट नो व्हाट द लॉ इज अबाउट। ये जुडिशियल हिस्ट्री जरा ठीक से बताइए। वी वांट टू लुक एट दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ EIR। जुडिशियल हिस्ट्री देखने का मेन पर्पस होता है, आप किसी केस को रीड आउट कर रहे हैं, बट कोई केस ऑलरेडी ओवररूल्ड हो चुका है, अगर आपको नहीं पता तो आप उसको उस पर टाइम लगाते रहेंगे। इसलिए हमने ये फीचर दिया हुआ है, अगर वो रेफर्ड इंक्लाइंड है तो आपके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कंपेरिजन टू ओवररूल्ड केस। इक्वल साइटेशंस, इक्विवेलेंट साइटेशन आल्सो अवेलेबल। इक्विवेलेंट साइटेशन का मतलब होता है आप जो केस रीड आउट कर रहे हैं उसके अलावा ये केस कितनी बुक्स में पब्लिश हुआ है, क्योंकि सिर्फ हम ही नहीं है ऑल इंडिया रिपोर्टर जो केस पब्लिश करते हैं, बहुत सारी कंपनी है जो केस बनाती है। सपोज मनु पात्रा, मेरे पास टॉकिंग अबाउट मनु पात्रा, कि ये केस मनु पात्रा में भी प्रिंट हुआ या नहीं हुआ, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस। जो केस आपके सामने ओपन है वो इतने सारे जर्नल में हो रखा है, आप इस इंडेक्स में देख सकते हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट, APLJ, SEC में सुप्रीम कोर्ट केसेस। इसके बाद जो हमारा सर्च इंजन है नॉमिनल इंडेक्स। नॉमिनल इंडेक्स इट मींस पार्टी नेम। लाइक आपको कभी कोई केस फाइंड आउट करना है, आपको उसका साइटेशन नहीं पता है, सिर्फ नाम पता है, लाइक प्रहलाद सिंघाड़ा, अमित कुमार सिंह, जसवंत सिंह, मंकू नारायणा वर्सेज कुछ भी आपको पता है तो आप पार्टी नेम वाइज आप फाइंड कर सकते हैं। साइटेशन सर्च में क्या था, आपको किसी भी जजमेंट की पर्टिकुलर साइटेशन पता है, सपोज EIR 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर सो एंड सो, बट सपोज आपको साइटेशन नहीं पता, आपको सिर्फ पार्टी का नाम पता है, वेदर इट इज पिटीशन एंड एक्सपोनेंट, तो आप पार्टी के नाम के अकॉर्डिंग भी आप सर्च आउट कर सकते हैं। नॉमिनल सर्च में आपको किसी भी एक पार्टी का नाम पता होना चाहिए। बताना चाहूँगा, आप सब फ्यूचर एडवोकेट हैं, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के अंदर 2 ही कंपनी सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड है जिसका जजमेंट आप पब्लिश वहाँ पे दे सकते हैं जजेस के सामने। फर्स्ट इज ऑल इंडिया रिपोर्टर नागपुर एंड सेकंड इज ईस्टर्न बुक कंपनी। तकरीबन 30 to 40 कंपनीज है मार्केट में, बट आपको जब कभी भी आप सुप्रीम कोर्ट के में कभी हियरिंग के लिए जाते हैं तो आपको 2 ही जर्नल के साइटेशन आप वहाँ पे दे सकते हैं। आप रीड आउट कहीं से भी कर सकते हैं, लाइक मनुपात्रा, JCC, SEC बहुत सारे आते हैं, बट आपको सिर्फ वहाँ पे हियरिंग में 2 ही जजमेंट आप पब्लिश कर सकते हैं, ईस्टर्न बुक कंपनी एंड ऑल इंडिया रिपोर्टर। इसमें प्रिंट का ऑप्शन भी है, प्रिंट के 2 ऑप्शन है, एक नॉर्मल प्रिंट भी अपन निकाल सकते हैं, नॉर्मल सिंगल कॉलम में जो होता है। ये हमारे सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं जो हम प्रोवाइड कराते हैं आपके कन्वीनियंट यूज़ के लिए, कंज्यूमर इसमें देखती है। लाइक आपको किसी को PDF सेंड करना है, आप कोर्ट में है या जैसे आप
कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई जजमेंट अच्छा लगता है, आप साथ वाले कलीग को शेयर करना चाहते हैं कि यार ये जजमेंट बहुत अच्छा है, आप ये कीजिए, आपको बेनिफिट होगा, तो आप इसको PDF में सेव करके व्हाट्सएप मेल कुछ भी कर सकते हैं। यहीं से आप सेव एज ए PDF कीजिए, हो जाएगा। आप यहीं से मेल करना चाहते हैं, मेल हो जाएगा। आपको AIR प्रिंट भी अपन निकाल सकते हैं, इसमें ट्रू प्रिंट। ट्रू प्रिंट आउट का मतलब होता है, ट्रू प्रिंट आउट इट मीन्स आपको जब भी कहीं कोर्ट में केस प्रेजेंट करना है तो वहाँ पे ट्रू प्रिंट आउट ही मांगा जाता है। ट्रू प्रिंट आउट इट मीन्स रेप्लिका ऑफ द बुक्स, इसलिए ये फीचर सॉफ्टवेयर में ऐड किया हुआ है। आपको रीड आउट करना है तो आप नॉर्मल प्रिंट आउट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको कहीं कोर्ट में देना है तो आपको ट्रू प्रिंट आउट निकाल के ही आप उसको देंगे। जहाँ पर टॉप पे आपका जिस भी मतलब कि कस्टमर ने वो लिया होता है उसका नाम, वो सारी चीज़ें अपलोड होती है प्रिंट निकालते हैं। नेक्स्ट है जजमेंट डेट। आपको पर्टिकुलर किसी जजमेंट डेट से आपको कुछ निकालना है, उसके लिए स्पेसिफिक डेट। स्पेसिफिक डेट। इसके बाद आता है बेंच स्ट्रेंथ। बेंच स्ट्रेंथ का मतलब होता है जब जजमेंट डिलीवर होता है तो वहाँ पे कितने जजेस अवेलेबल होते हैं, लाइक 3, 4, 5, 6। अभी तक इंडिया के अंदर हाईएस्ट जो बेंच बैठी है वो बैठी है 13 की। वो केस था, आप लोग सभी उसको फ्यूचर में पढ़ेंगे, केशवानंदाबाद की हाईएस्ट बेंच स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। ये वाला क्वेश्चन KBC सपोज आपने देखा ही होगा, KBC फॉर्मेट सभापति, इसमें 1 करोड़ रुपीस का जो अमाउंट का जो क्वेश्चन था ना, वो यही था कि इंडिया की लार्जेस्ट जजमेंट, नंबर ऑफ जजमेंट क्या है। तो आप बेंच स्ट्रेंथ से भी आप सर्च आउट कर सकते हैं कि मुझे 5 जजेस वाली कोई जजमेंट चाहिए, 7 की चाहिए, 11 की चाहिए। कोर्ट वाइज एक इजी सर्च हो गया कि आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सेक्शन रीड आउट करना है, या दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट भी अवेलेबल है। 1950 से पहले के जो भी केस होंगे आप कहीं भी रीड करेंगे, जरूरी नहीं ऑल इंडिया रिपोर्टर में ही रीड करें, उसको बोला जाता है प्रीवी काउंसिल। ऑनरेबल जज के अकॉर्डिंग, जज के नेम के अकॉर्डिंग क्या सर्च आउट कर सकते हैं। आपको कभी भी ऑनरेबल जजेस के नाम से सर्च करना है, लाइक आपके फेवरेट है अल्तमस कबीर, दीपक मिश्रा सर, ऑनरेबल रंजन गोगोई सर, आपको सिर्फ पर्टिकुलर उन्हीं के रीड आउट करने हैं, तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। दीपक मिश्रा जी ऑनरेबल दीपक मिश्रा सर आप फैन कह सकते हैं, ऑल इंडिया रिपोर्टरों का फेवरेट पब्लिशर है। जो बेंच की बात हो रही थी वो देखिए यहाँ पे, ये दीपक मिश्रा जी हैं, के लाहौटी जी है, ये राजेंद्र। आपको बेंच स्ट्रेंथ कैसे पता करना है, तो आप देख लीजिए, इसमें 3 जजेस बैठे थे, ऑनरेबल दीपक मिश्रा सर, के लाहौटी सर, राजेंद्र मेनन सर। एक से पूछ करो। जो फर्स्ट स्टार्ट होता है ये है हेड नोट, ऊपर हेड नोट मतलब समरी। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंस लगता है तो लाइक पेरा दे रखे हैं, केस बहुत बड़ा होता है, आप सर्च रीड करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, तो उसकी इंपॉर्टेंट बातें कहाँ पे लिखी हुई है, लाइक पेरा नंबर 14, 15, 49, 53। जब कोर्ट में हियरिंग होती है वहाँ पे भी आप पूरा केस जजेस को नहीं समझा सकते, तो आपको शॉर्ट नोट बना के लेके जाने होते हैं। जब कोई पॉइंट पे वो पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों बोला है, तो उसके लिए रहता है ये कि सर पेरा नंबर 45 पे इसका वेरिफिकेशन है, आप जाके देख लीजिए, एक कॉपी उनके आप होती है, एक कॉपी अपने आप होती है। अब ये देखिए ये केस कहाँ रेकॉर्ड हुआ है, नंबर ऑफ जो केस ज़्यादा रेकॉर्ड हुआ है, इट मीन्स आपको अगर अच्छा एडवोकेट बनना है आगे जाके, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। इंडिया के जितने भी टॉप एडवोकेट हैं, लाइक हरीश साल्वे सर, गौरव कंसलंदा सर, सभी है टॉपिकल सर्च स्टूडेंट के लिए काफ़ी काम का है। जब आप स्टार्टिंग प्रैक्टिस करेंगे
तो लर्निंग स्टेज में आपको रिसर्च करना रहता है, तो आप टॉपिक में जाके सपोज आपको बेल के ऊपर रिसर्च करना रहता है, आपका सिविल प्रैक्टिस है, क्रिमिनल प्रैक्टिस है, तो उस पर आपको पर्टिकुलर किसी भी आर्बिट्रेशन पे करना है, बेल पे करना है, बैंकिंग में करना है, तो आप पर्टिकुलर टॉपिक पे इस वाले सर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके खुद के हेड नोट बना सकते हैं। एक्ट एंड सेक्शन में आपको पर्टिकुलर ये तो जानते होंगे, आप बैरिक्स पढ़ने हैं तो आप CRPC है, सिविल PC है, आर्बिट्रेशन है, जो भी आपको पर्टिकुलर रीड आउट करना है यहाँ से कर सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ऑल इंडिया के मेजर सेंट्रल बैरिक्स आपको सारे अवेलेबल होंगे, स्टेट एक्ट को छोड़ के, वो आपको बुक्स में मिल जाएगी। लॉज की नेम के बोलेंगे और बिल चर्चा होगा। इनकेस आपको कोई आपका फेमस एडवोकेट है, उसकी केसेस रीड आउट करना है, तो आप लोएस्ट नेम से सर्च कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को बहुत ही कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया है, जरूरी नहीं कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना है, फ्री टेक्स्ट सर्च भी आप जा सकते हैं, पर्टिकुलर किसी नेम के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर का एक मिनट यूज करना, अपडेट साइटेशन आपको पता करनी है कि ऑल इंडिया रिपोर्ट ने लेटेस्ट अपडेट साइटेशन कहाँ पर अपलोड की है, उसके लिए फीचर दिया हुआ है अपडेट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। आपको लास्ट अपडेटेड जजमेंट है 3/6/2022। 3 जून की जजमेंट भी अवेलेबल है। टुडेस डेट 3 जून का जो आपको जजमेंट, इसको आप फास्ट ट्रैक रिपोर्टिंग बोल सकते हैं कि आपको लेटेस्ट जजमेंट भी इसके अंदर अवेलेबल है। इन द 100% कवरेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, we are covering 100% judgment of Supreme Court. कोर्ट कैलेंडर भी अवेलेबल है, ऑल हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट। ये फैसिलिटी है सॉफ्टवेयर की, आपको कोर्ट कैलेंडर देखना है, वेकेशन कब पड़ रहे हैं, कहाँ पे हैं। जैसे दिल्ली में अभी प्रेजेंट टाइम में छुट्टी लग गई कोर्ट में, तो आप शिमला जा सकते हैं, वहाँ पे ओपन होगी। You can contact us also at any time. So if you have any problem regarding to contact details also available. ऑल इंडिया रिपोर्टर आपको समझ में आए या ना आए, आपको मन में बिठा लेना है कि आपको इसको पढ़ना है। विदाउट आप इसके फ्यूचर आप देख ही नहीं सकते, बिकॉज 100 ईयर ओल्ड कंपनी का जो डेटा है वो किसी कंपनी के पास नहीं है। ऑल इंडिया रिपोर्टर को इतना लार्जेस्ट डेटा no other one has. बेसिक स्टूडेंट को कंसेप्ट समझने के लिए ऑल इंडिया रिपोर्टर पढ़ना ही होगा, चाहे आप लोगों को नींद आ रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, बट पढ़ना तो पड़ेगा अगर आप फ्यूचर चाहते हैं। Where Act also available, Center and State Way Act also available. Articles also available. आर्टिकल आप रीड आउट कर सकते हैं, आर्टिकल में भी स्पेशल AR कमेंट होगा। All 16 journals date, all 16 journals. इस जर्नल में कितने केसेस थे, कौन कौन से केसेस थे, वो सारी डिटेल भी हमने सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी जजमेंट होगी फुल टेक्स्ट रिपोर्ट होगी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में ऐसे हैं जिनमें सिर्फ हेड नोट होता है, फुल टेक्स्ट जजमेंट नहीं होती है। आपको जो भी मिलेगा फुल टेक्स्ट जजमेंट मिलेगा। कॉपी पेस्ट फ्री टेक्स्ट सर्च होम पेज। आप जैसे सपोज स्टार्टिंग में आपको सॉफ्टवेयर का कुछ नहीं पता, तो आप फ्री टेक्स्ट सर्च यूज कर सकते हैं। इट्स लाइक अ गूगल सर्च। जैसे सपोज मैं इसमें डालता हूँ मर्डर, आप मर्डर डालेंगे, मर्डर में 1000 ऑफ केस आएंगे, तो आपका वो लगेगा कि कन्वीनियंट नहीं है, तो आप इसको सर्च विद इन सर्च कर सकते हैं। लाइक मर्डर इन मून नाइट, मर्डर बाय नाइट, कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। दैट फ्री टेक्स्ट सर्च। मर्डर में
पे आ रहे 1475 केस, मर्डर बाय नाइफ। It's called search within search. सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और ऐसे इसमें बताने को बहुत कुछ है, बट आपको बहुत लेंथी होगा क्योंकि मेन जो बेसिक सर्च इंजन है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, और आप इसको रीड आउट कीजिएगा। आप ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं तो ऑलरेडी रिपोर्टर को आप फिर से नहीं कहूँगा, आपको शायद ईगो लग रहा होगा, बट आप इसको छोड़ नहीं सकते। ये आपकी लाइफ में अगर आपको लो फील्ड में बना रहना है। थैंक्स टू ऑल। Software, your library will require it. And sir, I want to know whether students students. So the library will give access at one point of time to 10 students, only 10. So आप में से अगर कोई लोग मूट वगैरह कर रहे हो, you can take access to the software and use it during your house, during in your house also. At your home also. At your home also, you can continue to have a big thanks to this. You are using at your home this software, you are getting problems. So you can, as we told you, you can get a query online also. You can put a query online also, we will respond immediately. Thanks all. Thanks. And I thank our honorable guest speaker, Mr. Amit Singhal, for sparing his precious time. Thank you, sir, and all who are present here. Have a nice day and stay safe.